Jairam Ramesh has now raised questions to the central government. He has said that census has been conducted every 10 years since 1951. This brings out the actual data of the population of scheduled castes and scheduled tribes. It should have been conducted in 2021 but has not been done till date. Why is the Prime Minister silent on this? He further alleged that this is a conspiracy to destroy the constitution of Babasaheb Ambedkar. My colleague Anand Singh joins us on the broadcast to give us more details on this. Anand, give our viewers an understanding on the statements that have been made by Jairam Ramesh. Jairam Ramesh made the recent statement in regard to the Prime Minister Narendra Modi's serious controversial remark which he made yesterday. Jairam Ramesh, while slamming the Prime Minister, he mentioned how the caste census was being carried out across the country since 1951 after every 10 years. However, since 2021, no caste census has been done, which gave a clear picture of what is the population of scheduled caste and scheduled tribes across the country. And he also alleged that this is being done to destroy the constitution framed by Dr. B.R. Ambedkar. So, in this way, Jairam Ramesh is slamming the Prime Minister Narendra Modi during the Lok Sabha elections. Right, absolutely, Anand, absolutely. And of course, conducting a caste census, a nationwide caste census is of course a part of the Congress's manifesto. It's in fact an integral part of the manifesto. So what are the arguments that are in fact being made by the BJP and the Congress? Look, former Congress President Rahul Gandhi has been talking about caste census across the country since last year, ahead of the assembly elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and other states. So in this way, he has been putting pressure on the government to conduct a caste census across the country to understand the total population of the country and which caste combines how much of the population. So in this way, he was targeted asking the government to conduct the caste census. However, the BJP on the other hand has remained silent on the issue, and it has not said or promised anything like caste census across the country. So in this way, the Congress party has been putting a pressure on the government to conduct caste census. Indeed, absolutely. Anand, stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Mr. Rakesh Tripathi, BJP spokesperson. Sir, a very good morning to you and thank you so much for taking out time and speaking to us on News X. Now, Jairam Ramesh has raised questions and he stated that census has been conducted in India every 10 years since 1951. So why was it not conducted in 2021? Why is the Prime Minister silent on this is the question that has been raised by the Congress. How does the BJP respond to this? देखिए, पूरी दुनिया किस प्रकार से कोविड से ग्रस्त थी, ये बात शायद जयराम रमेश भूल गए हैं क्या? 2020, 19, 20, 21 का समय वो समय था जिस समय जान को बचाना आवश्यक था। जान हो तो जहान होगी, लेकिन जानबूझ करके इस तरह की बेसिर पैर की बात करना, जानबूझ करके समाज में वैमनस्यता का भाव उत्पन्न करना, समाज में विभाजनकारी राजनीति करना और मजहबी तुष्टीकरण करना, ये कांग्रेस की पहचान है और कांग्रेस इसीलिए लगातार इस तरह के बयान देने का काम करती है। जबकि सच बात यह है कि कांग्रेस मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। आज कांग्रेस जब इंदिरा गांधी जी के समय से गरीबी हटाओ की बात करती रही है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आज बाहर निकल करके आए हैं। 4 करोड़ लोगों को आज पक्के आवास मिले हैं। 13 करोड़ लोगों के घर में आज नल से जल पहुंचा है। आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में शौचालय बने हैं। ये सारे आंकड़े लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। पूरी दुनिया आज आश्चर्यचकित होकर के भारत की इस प्रगति को देख रही है कि कोविड के बावजूद भारत ने कैसे अपने डेवलपमेंट के पहिए को कभी रुकने नहीं दिया। अब कांग्रेस इन मुद्दों पर बात करने की बजाय अपने ट्रैक रिकॉर्ड से भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड की आज तुलना करने की बजाय वो जानबूझ करके इस तरह के बयान देना चाहती है कि कैसे समाज को जातिवाद की ओर ढकेला जा सके, कैसे समाज में मजहबी तुष्टीकरण किया जा सके। जी एब्सोल्युटली। तो जो आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बीजेपी जो कह रही है इज दैट जितने भी योजनाएं प्रधानमंत्री ने जारी करी हैं, दोज हैव बीन वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड हैव इन फैक्ट हेल्प्ड इन द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। इज दैट द आर्गुमेंट दैट द बीजेपी इज मेकिंग? हाँ, निश्चित तौर पे हमने किसी जाति, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी पंथ, किसी भाषा का परवाह किए बिना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं बल्कि अपनी योजनाओं के माध्यम से करके दिखाया है।
देखिए, हम कभी भी कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं है। कास्ट सेंसस हो, हम इस बात को लेकर के कभी विरोध में नहीं रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके जिस तरह से जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास बार बार क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहले यह काम केवल क्षेत्रीय दल किया करते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी खुल करके आज इसमें साथ में आई। और हमने राहुल गांधी के उन बयानों पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है, जिसमें वो बार बार कैबिनेट सेक्रेटरीज के संदर्भ की जाति के संदर्भ में बयान देकर के क्या साबित करना चाहते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरीज की भर्तियां किनके समय में हुई हैं। आज भर्तियों में किसी प्रकार का कोई भाई भतीजावाद, कोई भ्रष्टाचार, कोई पैसे से नहीं हो रही है, बल्कि योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधारों पर और भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण के आधार पर हो रही है। उसके बावजूद बार बार लोगों को यह डर दिखाना कि आरक्षण को लेकर के खतरा है, बार बार लोगों के अंदर जातीय भावनाएं भड़काना, उन्माद फैलाना, ये समाज को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। सत्ता पाने के लिए वो समाज में कितना विभाजन करेंगे। जी एब्सोल्युटली। तो मतलब मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कास्ट सेंसस है, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट promises that the Congress has made for for the upcoming for the elections that are now being conducted in India at this point of time. आप कह रहे हैं कि why is caste census not going to help India in the BJP's mind? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को इस समय कास्ट, जाति ही देश की सबसे बड़ी समस्या और जाति ही देश का सबसे बड़ा समाधान लग रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की समस्याएं गरीबी से जूझना रही है, जिसका समाधान देने का हमने प्रयास किया है। इस देश की समस्या भ्रष्टाचार को दूर करने की रही है, जिसका समाधान देने का हमने प्रयास किया है। इस देश की समस्या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा रही है, जिसका समाधान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। आज इन मुद्दों पर बात करने की बजाय वो बार बार जाति के पीछे ही भागना चाह रहे हैं। देश में किसी प्रकार की समस्याएं उनको और नहीं दिखाई पड़ती हैं। आज वो क्यों नहीं आज गरीबी के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, आज वो महंगाई के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, आज वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, विदेश नीति के संदर्भ में बहस करना चाहते हैं। आज इन सारे मुद्दों पर क्यों कांग्रेस पार्टी बात नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही समस्या देश में केवल रह गई है, केवल जाति, केवल मजहब। वो जाति और मजहब के सहारे किसी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। Right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.